مڑدار چاروں کا بریک اپ معشمار وشت کنا چکے نیشنل پارٹی مرکزی ترجمان جان بلدی صاحب کا پتران کن گائی گوشا ہمیشہ کہ نام اپوزیشن تجویز کو تگا یہ کنٹروورشل نام تو دیم طرح کے ہستے مچاریں چی فیصلہ کنک بھی تو اشرف جہانگیر قاضی صاحب یا گوشگا کیا بالکل ایک غیر جانبداری غیر متنازع مردمی اگر پتران بڑھ جائیں اگر پتران میں گوم آوار ہیں رات ملک صاحب سینئر تجزیہ کاری آئیں گے کا پتران کنی. السلام علیکم ملک صاحب. السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ملک صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. ملک صاحب دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اب تک 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، لیکن اب تک جو ہے معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان حل ہو سکتا ہے یا معاملہ جو ہے آگے جائے گا؟ دیکھیں، اس موضوع پر جو فریقین باہمی بات چیت کر رہے ہیں ان میں سیاسی پس منظر کا جو بہت نمایاں فرق ہے. آپ کے سوال کو اور یا اس طرح کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ ایک فریق جسے اپوزیشن کہتے ہیں وہ اگر مشرق کی سمت کھڑی ہے تو حکمران جماعت یا حکومت بلوچستان وہ اس کے بالکل 180 کے زاویے پر کھڑی ہے. ایسا نہیں کہ 2 مختلف فریقین کی بات نہیں کر رہا، میں ان فریقین کے پس منظر کی بات کر رہا ہوں. حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں سیاسی پروسیس کے نتیجے میں موجود ہیں، بس ایوان میں بھی اور سماج میں بھی. لیکن جو حکمران جماعت ہے، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ وہ کسی سیاسی عمل کے نتیجے کی بجائے غیر سیاسی حرکیات کی وجہ سے معرض وجود میں آنے والی ہے. اس لیے اس کے تمام تر اقدامات، سوچ، زاویے، فیصلے اور رویوں کا تعین اس کا جو پس منظر ہے وہ ہی فائنلائز کرنے کی اصل صلاحیت رکھتا ہے. اور وہ جو چاہے گا، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے ہونے کا امکان کسی دوسری بات کے مقابلے میں زیادہ مستحکم ہے. تو لیکن یہ معاملہ جو ہے جی بات کریں. اس لیے اگر اس وقت تک اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جی دونوں فریقین کے درمیان جو پس منظر کی خلیج ہے اس کو چاہیے کہ پس منظر والی قوتوں کو ذرا 2 قدم پیچھے ہٹ کے اسمبلی کے لوگوں کو، حکمران اور اپوزیشن کو آزادانہ موقع فراہم کریں کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کر سکے. لیکن ایک بنیادی سوال میں آپ کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ ہم کیوں دنیا میں پاکستان کو ایک واحد مثال بنانے پر تلے ہوئے ہیں عرصے سے کہ جہاں جمہوری حکومتیں بھی ہیں اور نگران حکومتیں انتخاب کرانے کے لیے آتی ہیں. گویا کہ 5 سال اقتدار کی مدت پوری کرنے کے بعد جس جو حکومتیں ہوتی ہیں ہم انتخابات کے لیے اس پر اعتماد نہیں کرتے، لیکن 5 سال اقتدار کے لیے ان پر اعتماد کرتے ہیں. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس جماعت کو ہم 5 سال ملک کے سیاہ و سفید کا مالک قبول کرتے ہیں اسے انتخاب کرانے کے لیے اس پہ اعتماد کرنے سے قاصر ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک آئینی ترمیم کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والا نظام ہے، لیکن کیا اس کی کوئی سیاسی فلسفی یا نظریاتی بنیاد بھی ہے ماسوائے عدم اعتماد کے؟ اور اگر عدم اعتماد ہی ہے، نااہلی ہی ہے اور جانبداریت ہی ہے تو پھر ہم 5 سال اس طرح کے لوگوں کو یا جماعت کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک کیوں بناتے ہیں؟ پورے 5 سال عدم اعتماد کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرا کہنا یہ ہے کہ جی نگران حکومتوں کی تشکیل کا جو سیٹ اپ آئین میں بنایا گیا ہے، ضرورت ہے کہ اسے ختم کر کے منتخب حکومتوں کو ہی یہ موقع دیا جائے کہ وہ آنے والی اسمبلیوں کے انتخاب کا اہتمام کریں. اور چونکہ انتخابات الیکشن میں کروانے ہوتے ہیں اس میں حکومتوں کا رول ویسے ہی کم ہو جاتا ہے، تو الیکشن کمیشن الیکشن کروائے، انتظامی معاملات منتخب حکومت کے پاس رہے، عدلیہ الیکشن میں ہونے والی اعتراضات، دھاندلی اور ناانصافی کے ازالے کے لیے آئینی اقدامات کرے، امن امان کو قائم رکھنے والے ادارے بشمول فوج، پولیس اور نیم فوجی ادارے الیکشن کو پرامن رکھنے کے لیے کردار ادا کریں، نہ کہ شفاف بنانے کی طرف جائیں. نہ عدلیہ کو الیکشن کرانے کی ذمہ داری لینی چاہیے نہ کسی اور کو. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اور منتخب حکومت کو اپنی انتظامی طاقت کے ساتھ شفاف، قابل قبول، منصفانہ، جائز انتخابات ویسے ہی کروانے چاہیے جیسے دنیا بھر کے جمہوری حکومتوں کے آئینی ڈھانچے میں ہوتا ہے. تو لیکن ملک صاحب یہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وفاق میں یہ مسئلہ حل ہو گیا
पंजाब में जो तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, नून लीग की हुकूमत है, तो वो भी मिल बैठ के उन्होंने ये मसला हल कर दिया। तो बलूचिस्तान जो है यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मखलूत हुकूमत है, तो अपोजिशन भी जो है नेशनल पार्टी उसमें है, उसमें पख्तूनख्वा मैप भी है, तो जमीयत भी अपने आप को अपोजिशन कहता है, मेंगल भी, तो ये मामला हल होने की तरफ नहीं जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है कि मामला जो है हल होगा, ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा, पार्लियामानी कमेटी में जाएगा, बज़ाहिर लगता क्या है? जी, अगर 3 हिस्सों पे मुश्तमिल कोई फैसला साज इदारा है, जैसा आपने कहा कि 2 कुव्वतें अपोजिशन की हैं और एक हुकूमती बेंच है, हुकूमती बेंच का ही एक हेडन पार्ट जो है JUI के काबिल दोस्त एहतराम दोस्त जो हैं, वो अपोजिशन बेंचों पर भी अपनी मौजूदगी का दावा रखते हैं और इक़्तिदार में भी वो कहीं कहीं दूर दूर से मुहद्दब से देखा जाए तो फ़आल नज़र आते हैं। अगर ये 3 कुव्वतों ने फैसला करना है तो फैसला नहीं होगा, और मुझे लगता है कि जी शायद ऐसा ही करवाया जाए ताकि मामला अपोजिशन और वज़ीर आला के हाथ से निकल के असम्बली में आए और असम्बली से फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए, और वहाँ से जैसे हमने देखा बलूचिस्तान असम्बली में अचानक एक नई जमात और नया रुझान परवान चढ़ाया गया, बाप के नाम पर एक जमात बनी, तो शायद इसी तरह की कोई नई निगरान हुकूमत भी बनाई जाए जो मनो अन मंशा पूरी करे, उनकी जो इंतखाबी नताइज को अपनी मर्जी के ताबे रखना चाहते हैं। वो कौन है मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ना लेना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो इंतखाबात पर अपनी मंशा फाइक रखते हैं और चाहते हैं कि जो भी नताइज निकले वो उनकी ख्वाहिश, मंशा और ज़रूरत के ताबे होने चाहिए। तो अगर ये 3 फरीक फैसला करने बैठेंगे तो फैसला नहीं होगा, 2 फरीकैन को फैसला करना चाहिए, किसी भी तीसरे फरीक को, चाहे वो असम्बली के अंदर हो या असम्बली से बहुत दूर हो, इस फैसले में अपने वजूद को घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी बुनियाद पर फैसला हो सकता है। अगर तीसरा फरीक मुदाखलत करेगा, वो चाहे सियासी जमात की शक्ल में हो या गैर सियासी में, तो फिर शायद फैसला नहीं होगा। तो लेकिन जो अशरफ जहांगीर काजी साहब का नाम है, तो ये कहा जा रहा है कि गैर मुतनाज़ा शख्सियत नहीं, तो उनका एक बैकग्राउंड भी है, तो आपको लगता है कि जो अशरफ जहांगीर काजी साहब हैं वो बिल्कुल एक फेवरेट नाम है निगरान वज़ीर आला के लिए, उसको होनी चाहिए, तो इसकी भी काफ़ी हद तक कोशिशें की जा रही हैं अपोजिशन की जानिब से कि उनको जो है वो नामज़द किया जाए, तो क्या कहेंगे आप अशरफ जहांगीर काजी साहब के बारे में, जो कि इसका एक अच्छा बैकग्राउंड भी है? जहांगीर अशरफ साहब के जो दादा रिश्ते में रहे, वो रियासत कलात के वज़ीर आज़म भी रहे हैं। इसी एतबार से अगर देखा जाए तो उन पे इतमाद किया जा सकता है, अगर अदम इतमाद का यहाँ सवाल मौजूद है। दूसरा ये है कि जी ये जो बात है कि जी गैर मुतनाज़, मेरा नहीं ख्याल कि जी दुनिया में कोई शख्स गैर जानिबदार होता है। हर शख्स के अपने सियासी नज़रियात, रुझानात और मैलानात होते हैं, वो सियासी भी हो सकते हैं, मजहबी भी, नस्ली भी, निशानी भी, कौमीती भी। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि जिस शख्स को भी लाया जाए उसकी दयानतदारी और कैपेबिलिटी जो है वो मुसलमा होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने नुक्ता नज़र पे फिर इसरार करूँगा कि क्या ज़रूरत है निगरान हुकूमतों के क़याम की? क्या हम आइन से इस कमज़ोर शिक को निकाल नहीं सकते? तो और अगर लेकिन मलिक साहब, अगर तो आप कह रहे हैं कि इसमें जो है ज़रूरत नहीं है आइन में इस शक को निकाल दिया जाए, तो फिर जब एक आइनी मुद्दत असम्बलियों की पूरा हो जाएंगी फिर तो उसको संभालेगा कौन? ये जो टेन्योर है 3 महीने के दरमियान जब जनरल इलेक्शन होंगे, तो फिर क्या करना चाहिए, आइन में क्या डालना चाहिए? सिर्फ आपका ही मसला है, पाकिस्तान का ही मसला है। बरतानिया में कोई निगरान हुकूमत बनती है, भारत में बनती है, अमेरिका में बनती है, जर्मनी में बनती है, फ्रांस में बनती है, यानी दुनिया के किसी और जमहूरी मुल्क में जहां हुकूमतें इलेक्शन के जरिए कायम होती और ख़त्म होती हैं, क्या वहां पे कोई निगरान हुकूमत बनाने का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाजेज हैं? आपको इस सवाल के जवाब में मासवाए नफ़ी 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 के कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा। तो दुनिया में क्या हम ही एक ऐसा मुल्क और ऐसी कौम और ऐसे माशरा हैं जो 3 माह के लिए एक हुकूमत पे इतमाद नहीं करते और 5 साल के लिए उस पर इतमाद करते हैं? मैं बुनियादी तौर पर फिलासफिकली क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि जब हम 5 साल एक जमात को, एक फ़र्द को, एक ग्रोह को इक़्तिदार देते हैं और उसे स्याह और सफ़ेद का मालिक बनाने का बज़ाहिर ऐलान करते हैं, तो उसे इंतखाब कराने का मौका क्यों नहीं देते, जबकि इलेक्शन की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन के होते हुए
मुंतखब हुकूमत का एक इलेक्शन करवाने का मतलब ये नहीं होगा कि वो इलेक्शन करवा रही है, वो इलेक्शन का एहतमाम कर रही होगी। इलेक्शन के इंतजाम तो इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। तो क्या अगर इलेक्शन कमीशन भी ऐसा है कि उसे एक निगरान हुकूमत के मातहत काम करना है, तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाए, अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के लिए सवाल उठाए। तो लेकिन जब ये भी कहा जाता है कि जब निगरान सेटअप जो है वो गैर जानिबदार होकर बैठेगी तो इलेक्शन में जो गैर शफाफियत का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। क्या जो इलेक्शन की शफाफियत या जो क्रेडिबल ट्रांसफर इलेक्शन में निगरान हुकूमत एक किरदार अदा कर सकता है, या ये सिर्फ बातें हैं? इस सवाल के जवाब में ये अर्ज करूंगा कि जो मुल्क में 1970 से लेकर अब तक इंतखाबी अमल जारी है और हो रहा है वक्फे से, कभी 2.5 साल के बाद, कभी 11 साल के बाद, बहरहाल। लेकिन मैं मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक बात कोट करूंगा जो अखबारात में भी छपी है कि उन्होंने फरमाया था कि हम ये चाहते हैं कि मुल्क में 1970 के बाद पहली बार शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। तो मैं ये कहूँगा कि आपके सवाल का जवाब तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल वाज़ेह दे दिया कि 1977 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो निगरान हुकूमतों के ज़ेरे साया हुए हैं और वो फरमा रहे हैं, और उनका फरमाना जो है वो बड़ा काबिल एहतराम है, बड़ा वजन है उसमें। हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, वो कह रहे हैं कि जी निगरान हुकूमतों के दौर में भी होने वाले इलेक्शन शफाफ नहीं हुए हैं। तो ऐसे निगरान हुकूमतें जिनके मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय और बड़ी मोतबर राय ये है कि जी वो शफाफ इलेक्शन नहीं करवा पाए हैं, तो मेरा इसरार ये है पॉलिटिकली, फिलासफिकली, कि फिर निगरान हुकूमतों के सेटअप के साथ चिपटे रहने की गुंजाइश और ज़रूरत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राहत मलिक साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारुका राहत मलिक साहब गपुत्रान कनगा बलूचिस्तान निगरान सेटअप पे हवाला तो कुछ हमेशा के ये शक के असने आईना का शक भी निगरान सेटअप पे ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ये मौजूद ही भले निगरान सेटअप के असने मौजूद भी तो इलेक्शन शफाफियत अबेद से माह दौराना के जनरल इलेक्शन बंद तो ये दौराना हम गिनते के एक सिस्टम ही एक सेटअप ही मौजूद होगी ताकि आईनी तरीका होती जिम्मेदारियाँ पीलो बिका चूँकि वदा ये मामला सिंध विवक्ष पंजाब वफा का गिशु गिवार गुत्ता भले बलूचिस्तान या सिंध और खैबर पख्तूनख्वा मामला अंगता मांगिश था तो देखिए चिचू रोचा पद ये मामला मांगिशी या गिशु गिवार कनक भी पर्चा के बाद ज़रूरी है निगरान सेटअप बिनिंदी तो निगरान सेटअप निंदक बाद ज़रूरी है अगर ये मामला कहते हैं गिशु गिवार नबी हुकूमत और अपोजिशन दरमियान तो ये मामला दोमी निमगा मगंदे के इलेक्शन कमिश्नर शोधका तो इलेक्शन कमीशन कहते हैं कमेटी निंदी तो आयक निगरान वज़ीर आला दारी तो से मुलाकात गुत्ता से मुलाकात जोड़े आसरी दर नियत का दिन तरह चाह रहे कि मामला को ज़्यादा सर भी चौड़ा भी मनादार चारों का को अमीद आका मराक्षत पास लास्ट मुत्ता अल्ताफ़ बलोच रजा भी दिए अल्लाह वाउट।